Let us start with new chapter, that is securitization of debt. We have already done with, in the first chapter, while we were doing financial system, we have understood the meaning of securitization. It was just the meaning that we understood in chapter number 1. And now we are going to do whole chapter on securitization. That means a little much in detail. We will study about securitization. Okay, so we will begin with its meaning. Meaning of securitization, it means conversion of assets, especially a loan into marketable securities, typically for purpose of raising cash by selling them to other investors. Now, if you have any illiquid assets, any assets, especially loans, means bank have a biggest asset as in loan. They give loans, no? Bank gives loans. For banking sector, if you give a loan to somebody else, I'm taking example of banking sector. Now a commercial sector, I mean corporate sector, can also give a loan. I'm not saying only bank can give a loan, no, but I'm taking example of a bank so that you can understand it clearly. If bank gives a loan to somebody, if bank gives a loan to me, then it is borrowed fund for me, but it is an asset for bank. It is an asset for bank. No, it becomes their asset because on the due date, on the maturity date, I will repay the principal amount together with the amount of interest. So there are two payments that I will do, principal and interest. Principal amount and interest amount. So I will pay them two different amounts. Okay. So securitization means conversion of an asset, especially a loan, into marketable securities. That means into short-term securities that can be bought and sold. Tradable, that can be tradable. Marketable means tradable, that can be bought and sold. I mean to convert those loans into securities so that investors can buy them and sell them. Okay, and that is for the purpose of raising cash, because you have given loan to people, so you are facing shortage of cash now. Because you are facing shortage of cash, so this is securitization will help you to raise cash, will help you to face, to overcome the problem of shortage of cash. Because with the help of securitization, you will be able to sell all these loans to an organization that is known as special purpose vehicle. I will tell you what is that. Okay, and you will sell it to them and they will give you cash for that. They will give you consideration for that because all the loans are sold to them. Okay, so basically securitization most often occurs with loans and other assets that generate receivables. Receivables means principal amount and interest. Generate principal amount and interest means something you are going to receive in future from those assets and loans, such as different types of consumer or commercial debt. When you give people a amount of loan, that becomes their debt. No, it becomes their debt. It is borrowed fund for them, but for me it is my asset. Okay, it can involve the pooling of contractual debts. Contractual means the debts, those debts which involve contract period time. The time period of in the contract, the time period is disclosed. The maturity date is there, the installment payment date is there. So everything is written in the contract. Okay, so it involves the pooling of the contract. Pooling means I am taking away from you. It is your loan. It is somebody's, it is the loan that you have given to somebody. But I'm taking that loan from you now. Pooling means I'm taking the burden of loan now. I will receive the principal amount and interest. But for that I'm giving you the consideration. So अगर आपको कैश की नीड होगी, then you will be able to कैश शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे बोलने का मतलब. ओके,
defined as a process by which assets are sold to bankruptcy remote special purpose vehicle in return for an immediate cash payment. That's what I told you, that securitization is defined as a process. It is that process in which all illiquid assets are sold. Illiquid means which cannot fetch me good amount of money on the spot. Illiquid, it is blocked money. Now that particular asset will not be able to fetch me a good amount of money immediately. Therefore, I will sell it to a bankruptcy remote special purpose vehicle, SPV. Okay, I will sell to this organization. It is an organization, it is an institution that purchases illiquid assets and converts them into the securities so that they can sell it in the market to the investors. Okay, so this is a link between what to say, investors and financial institutions and banks. Okay, so special purpose vehicle will purchase all the assets from you, and in return they will give you immediate cash payment. So you will receive cash, so you can run your business and you can in fact आप उस कैश पेमेंट में से जो आपको मिली है, बैंक को जो कैश पेमेंट मिली है उसमें से और ज्यादा लोन्स वो प्रोवाइड कर सकते हैं और ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं. सो दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग मोर कैश. ओके, मतलब हमारी जो कैश ब्लॉक हो गई है ना उसको वापस जनरेट करने के लिए हम सिक्योरिटाइजेशन में जाते हैं. द रिसीवेबल्स ऑन द डेट्स, मतलब जो डेट पे मुझे रिसीवेबल्स मिलते हैं. अब ये डेट किसके लिए बोल रहे हैं? डेट मतलब जो बोरो करते हैं लोग, ये उनके लिए डेट है, पर मेरे लिए तो इनकम है ना. मैंने अगर आपको लोन दिया तो आपके लिए वो डेट है, बट फॉर मी इट इज इनकम, फॉर मी इट इज एन एसेट. तो जो मेरे एसेट पे मुझे मिलने वाली इनकम है, रिसीवेबल्स जिसे कहते हैं, what we call it as receivable. Receivable means the income that I'm going to generate, that income that I'm going to receive. हाँ, कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए. वेरी गुड. ओके, तो द इनकम दैट आई एम गोइंग टू रिसीव इज नोन एज रिसीवेबल्स ऑन द डेट अगेंस्ट कोलेटरल एसेट्स. अभी देखो मैंने आपको लोन दिया था, लोन के अगेंस्ट में आपने मेरे पास गिरवी रखे थे मॉर्गेज बेसिस पे. आपने सुना होगा मॉर्गेज वर्ड. मॉर्गेज का मतलब होता है कोलेटरल एसेट्स, मतलब सिक्योरिटी बेसिस पे आप क्या रख के जाते हो मेरे पास अगर मैं आपको लोन दे रही हूँ तो. So collateral assets are given to me and I am giving you loan against that. So for loan you are giving me collateral assets. Collateral means security basis पे कि क्या प्रूफ है कि आप मुझे पेमेंट करेंगे. आपकी कोई चीज रख के जाइए जिससे मेरे पास भी प्रूफ हो that I am not going to incur the losses by giving you loan, by giving a good amount of loan to you. सो अश्योरिटी तो मुझे भी चाहिए, 100% अश्योरिटी है ना. इसीलिए कोलेटरल एसेट्स मैंने आपके पास रख लिए. कैसे? प्रॉपर्टी के फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में, बिल्डिंग के फॉर्म में, अदर रियल एस्टेट के फॉर्म में, जो कि एक्सचेंजेबल होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन. यही तो वो एसेट्स हैं जो जो इलिक्विड हैं, जो मेरे पास हैं तो, लेकिन मैं उसमें से इनकम जनरेट नहीं कर सकती हूँ. तो यही तो वो एसेट्स हैं जिन्हें मैं सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में लगा देती हूँ और लगा लेने के बाद उसमें से अर्न करती हूँ. ठीक है, सिक्योरिटाइज मीनिंग कंटिन्यू है, अभी ये मीनिंग ही चल रही है. ठीक है ना. सिक्योरिटाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेट. अब हम डेट को क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं. वो एसेट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं जो इलिक्विड है. इलिक्विड मतलब, लिक्विड मीन्स नेवर अ शॉर्टेज ऑफ कैश, इलिक्विड मीन्स शॉर्टेज ऑफ कैश. वो एसेट्स है मेरे पास जिसमें मुझे, एसेट्स तो हैं पर कैश नहीं निकल सकती है, उन एसेट्स को बोलते हैं इलिक्विड एसेट्स. मतलब बहुत बहुत सारे ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स लग जाएंगे. हाँ, जिसमें से कैश जनरेट इमीडिएटली नहीं हो सकता. इमीडिएटली वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब जब मुझे चाहिए तब नहीं हो सकता, उसे कहते हैं इलिक्विड. ठीक है हलीमा, आपने बिल्कुल सही लिखा है, बस वो इमीडिएटली वर्ड ऐड करना पड़ेगा, है ना. जल्दी नहीं हो सकता, क्विकली नहीं हो सकता, इमीडिएटली नहीं हो सकता, तो उसको हम कहेंगे वैसी एसेट्स हैं जो इलिक्विड एसेट्स हैं. अब securitization is a process where it helps me convert those illiquid assets into securities. Now these securities are then
bought and sold in the financial market. Whenever I want to generate income, let me convert illiquid assets into securities. Now, securities can be bought and sold in the financial market. Okay, yes. If you notice, the first line calls a debt as an asset. ये first line है ना, process of converting debt. So यहाँ पे वो debt क्यों बोल रहा है? ये बैंक के लिए तो asset होती है, पर आपके लिए तो debt है ना. वो ये बोल रहा है, देखो, this is because, ये क्यों, इसको debt word क्यों use किया है? Because debt is a liability for the borrower. Somebody who is borrowing, it is debt for, it is liability for them. It is liability for him, but for a lender it is an asset. For the lender it is an asset. I am lending you money, I am giving you loan, so it, for me it is an asset, but for you it is a liability. Therefore यहाँ पे नाम क्या बोला है? Converting the debt into securities, converting those assets into securities which are illiquid. Are you getting my example? Yes. Okay, good. चलो नेक्स्ट देखिए, वन कैन ट्रेड सिक्योरिटीज क्रिएटेड फ्रॉम सिक्योराइजेशन. ओके, जो सिक्योराइजेशन में से आपने सिक्योरिटीज जनरेट करी है ना, उन्हें आप ट्रेड कर सकते हैं. सिमिलरली लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, स्टॉक के जैसा, बॉन्ड्स के जैसा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, डेरिवेटिव्स में आपने, मैम ने आपको पढ़ाया होगा डेरिवेटिव्स में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे स्टॉक्स होते हैं, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, उन्हें हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. ट्रेड करना सिर्फ बेचना नहीं होता है. ट्रेड करना मतलब खरीदना बेचना सब होता है. ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग दोनों आ गया. तो वन कैन ट्रेड सिक्योरिटीज, दैट मीन्स वन कैन बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज that are created from securitization process, as same as the stocks, bonds, future contracts. इनके जैसे हम इनको buy and sell कर सकते हैं. Very good. Buying and selling, very good. Now in simple words, अगर मैं ये पूरा सारा कुछ जो भी अभी मैंने पढ़ा उसको मैं simple words में अगर लेकर आऊँ, तो securitization ये वो process है where a financial company combines, एक फाइनेंशियल कंपनी, जैसे आप पकड़ लो बैंक, मैंने एग्जाम्पल बैंक का दिया था तो अभी भी मैं बैंक ही बोल रही हूँ. एक फाइनेंशियल कंपनी पकड़ लो बैंक, वो सारे सेवरल एसेट्स को कंबाइन करती है, मतलब एक साथ लेकर आती है सारी वो एसेट्स जो इलिक्विड हैं, सारी वो एसेट्स को कंबाइन करती है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनाती है एक एक, और उसे कन्वर्ट करती है सिक्योरिटीज में, जिसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी बोला गया. कंसोलिडेटेड मींस एक, उसको अभी उसको जोड़कर बिल्कुल एक बना दिया. सारे अलग अलग एसेट्स थे, उनको उन्होंने कंबाइन करके कन्वर्ट कर दिया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब इन सिक्योरिटीज में. यस, मैनी इनटू वन, मैनी एसेट्स कंसोलिडेटेड इनटू वन. कंसोलिडेशन का मतलब ये होता है बहुत सारे को एक में जोड़ना. Then financial companies issues these securities to the investors who then earn interests. अब ये सिक्योरिटीज बाहर इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, तो इन्वेस्टर्स से आपको कैश मिलेगी, आपकी कंपनी में कैश जनरेट होगी. अच्छा, और आपके लिए तो बेनिफिट है ही है, इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिट है. क्यों? क्योंकि उनके लिए भी तो बहुत सारे एवेन्यूज ओपन हो गए ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उनके लिए इंटरेस्ट अर्न करने का चांस मिल गया उनको. समझ आया? उनको भी तो इंटरेस्ट मिलेगा जब वो सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो. ठीक है, आगे देखिए, वी ऑल्सो नो सच सिक्योरिटीज बाय नेम. अब जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना, सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो उसको क्या बोला क्या जाते हैं, या तो उसे बोला जाएगा एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, या तो उसे बोला जाएगा मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, या तो उसे कहा जाएगा कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस. ठीक है, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं और इसमें ना फर्क भी होते हैं, इन टाइप्स में ना डिफरेंस भी होता है. अभी हम पढ़ेंगे ग्रेजुअली, जैसे हम आगे आगे चैप्टर को प्रोसीड करेंगे वैसे हम पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एसेट बैक्ड सिक्योरिटी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसेट बैक्ड एंड मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, एंड व्हाट इज कोलेटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशन. ये सब टाइप्स दिए हुए हैं.
ओके अभी इसने शॉर्ट में बता दिया, यहाँ पे देखो ये शॉर्ट में बता रहे हैं। एबीएस मीन्स एसेट बैक सिक्योरिटीज, एमबीएस मीन्स मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। दोनों ना लगभग सेम होते हैं, लेकिन जो एसेट बैक सिक्योरिटीज होते हैं ना, वो कौन सी एसेट्स को पूल करते हैं? क्रेडिट कार्ड का, जैसे आपने लोन दे दिया किसी को क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में, बैंक की बात कर रही हूँ, अगर बैंक ने क्रेडिट कार्ड दे दिया आपको, ऑफ कोर्स क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में आपको लोन ही मिलता है, एक शॉर्ट टर्म लोन, जिसमें से आपके पास आपके आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है तो भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, तो भी आप खर्चा कर सकते हैं, तो भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो it is a type of loan that bank gives you for certain number of days। तो ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया ना, ये लोन ही तो है, और क्या है, ये लोन ही तो है। क्रेडिट कार्ड इज अ टाइप ऑफ लोन लिमिटेड फॉर अ पीरियड, फॉर सर्टेन पीरियड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन्स मतलब ऑटोमोबाइल लोन्स, मतलब जैसे आपको कुछ खरीदना है, जैसे कार खरीदनी है या फिर कोई भी ऐसी चीज खरीदनी है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, जो वैसा कोई भी ऑटो लोन्स उसको बोलते हैं। एंड मोर, एबीएस किससे डील करता है? एसेट्स विच आर लाइक क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन्स एक्सेट्रा। लेकिन एमबीएस किस, देखो इसके बेसिस पे आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, है ना, इसके लिए आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन एमबीएस में आपको गिरवी तो कुछ तो रखना पड़ता है। जैसे आपने घर के लिए लोन लिया, घर खरीदने के लिए लोन लिया, तो कुछ तो पेपर्स गिरवी रखने पड़ेंगे, कुछ तो आपकी एसेट्स गिरवी रखनी पड़ेंगी, मॉर्गेज, उसे कहते हैं मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, एमबीएस। गिरवी मतलब सिक्योरिटी, वेरी गुड, मतलब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी आपको बैंक को कि मैंने आपसे इतना लोन लिया है, अगर मैं टाइम पे ना चुका पाऊं तो तो only then you can sell my property and fetch the amount from that particular asset। उसे कहते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। अब जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी होती है ना, लोन के फॉर्म में आपने लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रख दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग गिरवी रख दिया, तो ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग है इसमें से तो आप कुछ निकाल नहीं पा रहे हो, तो इसको आप स्पेशल पर्पस व्हीकल को बेच दोगे और वो आपको इमीडिएट कैश पेमेंट दे देंगे। अब वो ये बिल्डिंग के नाम पे सिक्योरिटीज निकालते हैं, सिक्योरिटीज निकालकर मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स बनाकर इसके नाम पे बेचते हैं इन्वेस्टर्स को, और इन्वेस्टर्स वो खरीदते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और इंटरेस्ट अर्न करते हैं उस पर, डिविडेंड अर्न करते हैं उस पर। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? क्लियर है सबको? हाँ अनम्यूट मैम। करके ठीक, हाँ मैम। यस मैम। ओके, यस वेरी मैम। चलो बहुत अच्छा। अभी देखो कॉन्सेप्ट, सिक्योराइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे बहुत क्लियर वर्ड्स में बहुत अच्छा लगा, अदरवाइज आपके लिए मीनिंग भी ठीक ही है, मीनिंग में सब कुछ आ ही गया है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी एक बार देख लेते हैं। Securitization refers to conversion of, I already told you, the illiquid assets into liquid assets. Those assets which does not generate income quickly, we will convert those assets into the assets which will generate income quickly. Okay, so illiquid assets are converted into liquid assets. So in this process you will sell all the assets होल्डिंग, मतलब जो आपके होल्डिंग में है, आपके पास है, आपके राइट में है, टू एन इंटरमीडियरी। हु इज इंटरमीडियरी? स्पेशल पर्पस व्हीकल इज एन इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी मीन्स एजेंट, who in turn will break these assets into marketable securities। मतलब वो एसेट्स को क्या करता है? सिक्योरिटीज के फॉर्म में ब्रेक करता है। अभी लिटरली एसेट को लेकर तोड़ा नहीं जाता है, बिल्डिंग को लेकर तोड़ा नहीं जाता है, बिल्डिंग के नाम पे वो जो इलिक्विड एसेट है ना उसके नाम पे शेयर्स निकाले जाते हैं। हाँ, कन्वर्ट जिसे कहते हैं, कन्वर्ट, वेरी गुड, कन्वर्ट किया जाता है। मतलब वो बिल्डिंग रहेगी, उसी के नाम पे आपने सिक्योरिटीज निकाल दी और वो सिक्योरिटीज लोग खरीद रहे हैं, तो उसके फॉर्म में कैश आ रही है ना आपके पास, उसी कैश में से आपने लोगों को, आप जनरेट करते हो वो कैश को, और वो ही कैश में से पेमेंट करते हो उस बैंक को जिसने आपको ये सारी एसेट्स बेची। समझ में आ रहा है ये साइकिल कैसे चलता है? देखो ये एक तरीका है, बस आप मतलब ये समझो एक तरीका है कि आप कैसे लोगों से उनकी सेविंग्स को फेच करते हो, निकालते हो। मतलब जो मनी है ना, जो ब्लॉक मनी हो गई है लोगों के पास सेविंग्स के फॉर्म में, घर पे पड़े हैं पैसे, उनको आप कैसे निकालते हो? अलग अलग तरीके होते हैं। सिक्योरिटाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ दोज टाइप्स।
ओके, सिक्योराइजेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय बैंक्स। देखा मैंने आपको बोला ना, सबसे ज्यादा ये बैंक्स यूज करते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल भी बैंक ही दे रही थी। प्रोसेस यूज्ड बाय बैंक्स टू क्रिएट द सिक्योरिटीज फ्रॉम लोन्स। अब जो देखो बैंक्स ने बहुत ज्यादा आपको लोन्स दे के रखे हैं, बहुत ज्यादा बाहर मार्केट में लोगों को, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को एंड कॉर्पोरेट फर्म्स को इतने ज्यादा लोन्स दे दिए इस साल में, इतने ज्यादा लोन्स दे दिए कि अब उनके पास कैश की शॉर्टेज पड़ गई है। अब वो क्या करें? अब क्या, लोन तो धीरे धीरे रिकवर होगा ना, इंस्टॉलमेंट में आप लोन देते हो ना लोगों को। कोई लोन दे दिया आपने 20 ईयर्स के लिए, कोई लोन दे दिया 10 ईयर्स के लिए, कोई लोन दे दिया 5 ईयर्स के लिए, तो कोई लोन दे दिया 2 ईयर्स के लिए। मतलब कितना कितना लंबा लंबा पीरियड है। तो इतने लंबे समय तक धीरे धीरे आपके पास कैश आएगी ना, प्रिंसिपल अमाउंट भी जो मिलता है वो तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। एक साथ तो आपको कोई पे नहीं करेगा ना, नहीं तो लोन लेने की जरूरत ही क्या थी लोगों को। अगर एक साथ वो आपको पे करें तो एक साथ तो वो बिजनेस में भी लगा सकते हैं। फिर लोन क्यों लेना है लोगों को? लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास कैश नहीं है ऑन द स्पॉट, 30-40 लाख रुपीज नहीं है, तो वो लोन के फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं और बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, जॉब के लिए इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट करते हैं, घर खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हैं लोन के अमाउंट को। ठीक है ना? अब लोन जो आपने लोगों को दे दिया, उसकी वजह से आपको शॉर्टेज पड़ गई कैश की। अब आप क्या करोगे? देखो लोन तो आपकी एसेट्स है ना, लोन आपकी एसेट है, आप अपनी एसेट्स को तो बेच सकते हो। तो आपने क्या किया, सारे लोन्स बेच दिए। ये लोन्स में से आपको जनरेट नहीं हो रही थी इनकम, क्विकली जनरेट नहीं हो रही थी, तो आपने क्या किया, इनको प्रोड्यूसिंग सॉरी लिक्विड लिक्विड एसिड्स बनाने के लिए आपने इन सिक्योरिटीज को बेच दिया। ओके, मतलब इसको कन्वर्ट करने के लिए बेच दिया सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ठीक है, अब these securities are sold to the investors and this removes the loan from the bank's balance sheets and enable the bank to expand their lending faster than they would otherwise be able to do. इसका मतलब क्या है? यानी कि आपके देखो, अगर आपने ये लोन सारे बेच दिए, आपको कैश मिल गई, कैश मिल गई, लोन्स चले गए, मतलब बैलेंस शीट में अभी लोन्स का जो बर्डन था वो कम हो गया ना, और आपको कैश का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा। कैश मिल गई आपको लोन बेचने से, आपने सारे लोन्स की अथॉरिटी किसी और को दे दी, अब आपको सीधा सीधा कैश मिल गई, इमीडिएट कैश, तो आपको कैश बैलेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। अब आपके पास कैश बैलेंस जो बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कैश एक्स्ट्रा जनरेट हुई है आपके पास, अब वापस उसको लेंडिंग आप कहीं और किसी को और भी लोन दे सकते हो ना, आपकी लेंडिंग फास्टर हो और बढ़ जाएगी। टू एक्सपांड द लेंडिंग फास्टर मतलब आप एज अ बैंक, आपके पास जो कैश जनरेट हुई है उसे आप और कहीं भी लोन के फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी कैश को वापस किसी और को लोन देकर, क्योंकि बैंक का तो काम है लोन देना। मेरे पास कस्टमर्स तो थे लोन देने के लिए, सॉरी लोन लेने के लिए, लेकिन मेरे पास कैश नहीं थी, तो मैंने पुराने सारे लोन्स बेच दिए और कैश में कन्वर्ट कर दिए। कैश में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास कैश आ गई, कैश आ जाने से मैंने बाकी के लोग जो मेरे लिए वेट कर रहे थे लोन लेने के लिए, उनको मैंने और लोन्स दे दिए, और लोन्स दूंगी तो और इनकम जनरेट होगी। समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। यस, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में तुम लोग बहुत ब्यूटीफुली आंसर्स कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन है ना, ये 2-3 बच्चे ही हैं जो मुझे आंसर करते हैं बस, है ना? सारे लिखो, सारे बोलो, सारे अनम्यूट करके आंसर दो, तो मुझे भी लगेगा आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी that you understand. Okay, in securitization, see, in securitization homogeneous pool of assets are identified. See, very very important. मैंने बोला ना, ये कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मीनिंग में इंक्लूड नहीं है। देखो, homogeneous pool of assets, what do you mean by homogeneous and heterogeneous? होमोजीनियस सेम होता है, हेट्रोजीनियस Very डिफरेंट। good, very good. Homogeneous, homo, same, uniform. All same assets will be identified together. All same type of assets means illiquid assets जितनी भी हैं, जैसे बिल्डिंग, सारी की सारी बिल्डिंग, लैंड आपने इकट्ठी कर ली, अब आपके पास ये मॉर्गेज पड़ी थी, ऐसे ही पड़ी थी, लोग आपके पास गिरवी छोड़ के गए थे, अब वो इनकम जनरेट भी नहीं हो रही है, उसमें से लोग लोन भी नहीं चुका रहे हैं, और उनकी बिल्डिंग और उनका फ्लैट, उनका घर, उनकी हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास पड़ी है। ठीक है, अब मैंने ये क्या कर दिया, बेच दिया।
तो homogeneous pool of assets are identified and then they are packed into an instrument. उन्हें मैंने एक साथ लाया और कंबाइन कर दिया. कंबाइन करके क्या कन्वर्ट कर दिया उसको किसमें? न्यू इंस्ट्रूमेंट में, इनटू अ न्यू इंस्ट्रूमेंट. और इस न्यू इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है सिक्योरिटीज. अब सिक्योरिटीज में तो बहुत कुछ होता है. शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं. तभी तो इसका नाम सिक्योरिटाइजेशन है ना. सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर रहे हो आप इलिक्विड एसेट्स को. इसके लिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया? सिक्योरिटाइजेशन. मतलब एसेट्स को आप कन्वर्ट करो सिक्योरिटीज में. ओके, into a new instrument that can again be sold to investors. ये मैंने पहले भी सिखाया. whose payment are supported by cash flow from that pool. उसी pool में से हम ये कैश जनरेट करते हैं. अभी इन्वेस्टर्स मुझे पे करेंगे सिक्योरिटीज खरीदने के टाइम पे, तो यही तो वो कैश है जो मैं बैंक को वापस दूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे लोन्स बेचे, एसेट्स बेची. तो ये वही तो कैश है जहां से मैं रोटेट, ये ऐसे ही तो कैश रोटेट हो रही है ना मार्केट में. एक के हाथ से निकली दूसरे के पास गई. ठीक है. और बैंक के पास जैसे ही कैश आएगी तो ये वापस लोगों के पास ही जाएगी लोन्स के फॉर्म में. देखो कैसे साइकिल रोटेट होता है. ये साइकिल जो है कैश का कैसे रोटेट हो रहा है. आया समझ में? सो ये पर्पस वही तो है कि जो हमारी कंट्री में जो कैश ब्लॉक हो रही है ना लोगों के सेविंग्स के फॉर्म में, उसे जनरेट कैसे किया जाए, उसे कैपिटल फॉर्मेशन में कैसे लाया जाए. सिक्योरिटाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल अरेंजमेंट. अब ये स्ट्रक्चर्ड ही तो है, एक के हाथ से निकल के दूसरे हाथ में जा रही है. लेकिन ये भी देखा जाता है स्ट्रक्चर में कि सामने वाले का रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो क्या है. मतलब सामने वाला रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करता है, कितना रिस्क ले सकता है. तो आपके कस्टमर के नीड्स के हिसाब से उसको हम प्रेफरेंस देते हैं, मतलब चेंजेस लाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस में. लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो समझेगा. In the structured financial arrangement, essential characteristics are promised to repay to the investors. क्या हम प्रॉमिस करते हैं इन्वेस्टर्स को? हम क्या पे करते हैं? वैल्यू, जिसके लिए वो खरीदने के लिए आए हैं ना. अंडरलाइंग फाइनेंशियल एसेट है, समझो बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग के नाम पे मैंने सिक्योरिटीज निकाली. तो सिक्योरिटीज की जो जितनी वैल्यू है वो तो हम आपको ऑफकोर्स देंगे ही ना. उतनी वैल्यू की तो अरेंजमेंट आपको करके देंगे ही. अच्छा, उसके साथ साथ हम आपको जितना आपका रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो है ना, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है ना, उस हिसाब से हम आपको ये इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे. मतलब कस्टमर के हिसाब से प्रेफरेंसेस दिया जाएगा इन्वेस्टर्स को. तो इन्वेस्टर्स के हिसाब से हम उनको जो सूट करता है रिस्क रिटर्न, उनके जो मैच करता है रिस्क और रिटर्न्स के पोर्टफोलियो में, उस हिसाब से हम आपको सिक्योरिटीज बेचेंगे. ठीक है, ये वो बताने की ट्राई कर रहा है. कैसे हेल्प करता है ये सिक्योरिटाइजेशन? आपको क्या हेल्प करता है? मतलब एक बैंक, अगर समझो मैंने एग्जांपल पहले से ही बैंक का लिया है, तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक ओनली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली. हाउ डज अ सिक्योरिटाइजेशन हेल्प? मतलब यहाँ पे अगर बैंक सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के अंडर में जा रही है, if bank is undergoing the process of securitization, how it would help him, how it would help a bank. ठीक है. सिक्योरिटाइजेशन हेल्प्स इन बूस्टिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट. मतलब आपको लिक्विडिटी हो जाएगी. लिक्विडिटी मतलब पहले कैश की शॉर्टेज थी, अब आपने सारे लोन सारी एसेट्स बेच दी तो आपको कैश मिल जाएगी ना. जो इलिक्विड एसेट्स थी, मैं नहीं बोल रही हूँ बैंक ही बेच दी, जो आपके पास ऐसी एसेट्स थी जो इलिक्विड थी वो आपने बेच कर कैश ऑन करी. इट हेल्प्स द फाइनेंसिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू रेज द फंड्स. अब आपके पास कैश आ गई. रेज द फंड्स मींस आपने जो इलिक्विड एसेट्स थी उन्हें बेचकर कैश ऑन किया, फंड्स रेज किए. If the company has already exhausted its funds by giving loans but want to give more loans, then it can use securitization to raise more funds. ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले दिया. अब देखो बैंक को ना, बैंक के पास कस्टमर्स आए लोन लेने के लिए, लेकिन आपके पास कैश की शॉर्टेज है, तो आप क्या करते हो? आप एग्जॉस्ट हो गए हो, फंड्स नहीं है आपके पास, एग्जॉस्टेड, हैज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड इट्स फंड्स. मतलब आपने ऑलरेडी जितने फंड्स थे वो मार्केट में यूज कर लिए, लोन के फॉर्म में लोगों को दे चुके हो आप. अब क्योंकि ऑलरेडी फंड्स तो आप
फंड्स तो मार्केट में लग चुके हैं, पर अभी बैंक कभी ना थोड़ी बोलेगी, बैंक तो चाहे कि लोग लोन लेने आए मुझसे। क्यों? क्योंकि लोन के जरिए ही तो बैंक को इंटरेस्ट मिलता है अच्छा खासा। तो यहाँ पर जो बैंक है अगर उसे ज्यादा लोन्स देने हैं तो पुराने लोन्स वो बेच देती है। सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस के अंडर में पुराने लोन्स वो किसी और को बेच देगी, वो उसको कैश दे देंगे, और कैश देने से उनके पास कैश की जो प्रॉब्लम थी शॉर्टेज की वो रिमूव हो जाएगी और उनके पास फंड्स रेज हो जाएंगे। रेजिंग with the help of raising of funds, you will be able to give more loans in the market. Such a company, ऐसी कंपनी कैन क्लब इट्स एसेट्स। अब ऐसी कंपनी जो चाहती है मैं और भी लोन्स दूं लोगों को, वो सारे एसेट्स को क्लब करेगी, क्लब मतलब एक साथ लेकर आएगी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और कन्वर्ट किस में करेगी? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये आगे लोगों को बेचा जाता है, इशू किए जाते हैं इन्वेस्टर्स को ये इंस्ट्रूमेंट्स। तभी तो कैश जनरेट होगी, नहीं तो जनरेट कैसे होगी कैश? हाँ, फाइनेंशियल मार्केट में ये प्रोसेस होता है पूरा। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट की तो ये सारी चीजें हैं, ये सब फाइनेंशियल मार्केट में ही होते हैं। सो द प्रोसेस हेल्प्स द कंपनीज टू रेज द फंड्स एंड गिव मोर लोन्स फॉर द इन्वेस्टर्स। अभी इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? सच इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प्स देम डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एंड अर्न क्वालिटी रिटर्न्स एज वेल। अब इन्वेस्टर्स के लिए भी तो फायदा है, वो अपना पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, मतलब एक जगह पे पैसा ब्लॉक नहीं करना है मुझे, डाइवर्सिफाई चाहिए मुझे, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। थोड़ा पैसा यहाँ लगा दिया, थोड़ा पैसा सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस में लगा दिया, थोड़ा पैसा मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो ये मेरा पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है ना अलग अलग सिक्योरिटीज में। वेरी गुड। तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा इन्वेस्टर्स का अमाउंट, और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आप रिटर्न्स भी अच्छे अच्छे खासे अर्न करते हो। कहीं नुकसान हो भी गया तो एक सिक्योरिटी का नुकसान दूसरे सिक्योरिटी के प्रॉफिट से कॉम्पेंसेट हो जाते हैं, कवर अप हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। लेमन टर्म्स में एक छोटा सा एग्जांपल है जो आपके सामने है। इन अ नॉर्मल कोर्स एसेट्स लाइक बैंक के लिए, हाँ बैंक के लिए एसेट्स लाइक लोन्स एंड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू यील्ड अ क्वांटिफाइड स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर इनकम्स। जैसे एग्जांपल ईएमआई, आप किसी को लोन देते हो तो आप उनसे एक साथ नहीं रिसीव कर सकते हो ना सारा अमाउंट। यू एक्सपेक्ट अ क्वांटिफाइबल, मतलब एक साथ जो अमाउंट थोड़ा 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 करके आएगा ना वो फ्यूचर इनकम हो जाएगी आपकी, मतलब धीरे धीरे पैसा मिलेगा। ईएमआई का मतलब होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। इसका फुल फॉर्म होता है इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वल मतलब आपको हर महीने 20,000 ऐसे मिलेगा, एक साथ तो नहीं मिलेगा ना। समझ आ रहा है आपको? हर साल 2,40,000 मिलेगा, लाइक दैट वे। सो हाउएवर सिंस दिस इनकम इज येट टू बी रियलाइज्ड, अभी तक पूरी इनकम मुझे मिली नहीं है, इट कैन नॉट बी ब्रॉट इनटू देयर बुक्स इमीडिएटली। अब मैं अपने बुक्स में तो दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि सारी इनकम एक साथ नहीं मिल रही है ना, ईएमआई के फॉर्म में मिल रही है बैंक को। Through the process of securitization, bank try to encash these future flows as yet unrealized income। मतलब सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस से बैंक क्या करती है, ये सारा कैश ऑन द स्पॉट ले सकती है, एनकैश कर सकती है ऑन द स्पॉट। जो फ्यूचर वाले इनकम्स है ना इनको ऑन द स्पॉट एनकैश कर सकती है, मतलब ये सारे एसेट्स को बेचकर ये सारी इनकम जनरेट ऑन द स्पॉट करके कैश बैलेंस शीट में दिखा सकती है कि सारी की सारी कैश मुझे मिल गई जो फ्यूचर में मिलने वाली थी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में। आया समझ में एग्जाम्पल सबको? ओके, अभी हम 5 मिनट्स की ब्रेक